हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। अपनी हैट्रिक को ब्रेक करते हुए आज मैं आ गई हूँ फुल फेस ऑफ मेकअप के साथ। वेट बाल खराब हो गए। आज मैं आ गई हूँ फुल फेस ऑफ मेकअप के साथ टू टॉक अबाउट one of the worst murders from one of the worst serial killers in the world, Jeffrey Dahmer. Okay, first things first, I have a little bit of information to give. So this is going to be the last full length video for a while. Because I'm thinking कि for this channel I'm going to stick to shorts first. Like मैं चाहती हूँ कि channel थोड़ा सा grow कर जाए. So I'm going to upload shorts more frequently because shorts की reach सबसे ज़्यादा है. So I'm going to upload just shorts like 3 या 4 एक हफ्ते में, sort of like that. Right, and full length video को अभी हम थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट दे रहे हैं. And once I feel like I am at a good place and I can go in with full length videos, I will get back to them as well. Okay, so yeah. That is that. So without any further ado, let's get into the video. Let's go. So जेफ डामर की मैंने एक्चुअली अभी बहुत रिसेंटली सीरीज देखी थी नेटफ्लिक्स पे, द डामर मॉन्स्टर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. एंड यू नो जेफरी डामर की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ पहले बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. सो जेफरी डामर ही वाज एन अमेरिकन सीरियल किलर. सो अगर आप वर्ल्ड में वर्स्ट सीरियल किलर्स का कभी जिक्र करोगे, सो जेफरी डामर इज गोइंग टू बी देयर इन टॉप 3 फॉर श्योर. ठीक है, जेफरी डामर वाज really disgusting. Okay, so Jeffrey Dahmer is also known as Milwaukee Cannibal. So Milwaukee जगह है जहाँ का जेफरी रहता था, ठीक है, वो वहाँ का रहने वाला था. And cannibal because he used to consume human meat. वो जिन लोगों को मारता था उनका मीट भी कंज्यूम करता था. Okay, so he was a serial killer. He was a very well known sex offender and he was gay. So वो सिर्फ लड़कों के ऊपर अटैक करता था, वो लड़कों को अपने साथ लेकर जाता था, उन्हें ड्रग करता था, and he used to molest them and he used to kill them. He used to eat their meat और वो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश करता था, you know, just to keep like a token of his murder, something like that. He was twisted. Okay, he was pathetic, right? So जेफरी डामर ने अपने पूरे सीरियल किलर के करियर में 17 men या boys का मर्डर किया था between 1978 to 1991. So around 13 years में he killed around 17 men. His whole case, it's full of necrophilia, it's full of cannibalism, and if you don't know what is necrophilia, it's having sex with a dead body. Okay, and cannibalism is consuming human flesh. Okay, so trigger warning: if you are triggered by any of these, don't watch this video. Okay. As I said, जेफरी ने 17 लोगों का मर्डर किया है और उस सीरीज के अंदर 17 के 17 मर्डर्स को दिखाया था. उसके एक एक विक्टिम की बात हुई थी बिकॉज दैट सीरीज वाज नॉट जस्ट अबाउट जेफरी, इट वाज मोर अबाउट हिज विक्टिम्स. सो देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन द केस बिकॉज जेफरी के ज्यादातर विक्टिम्स एथनिक माइनॉरिटी से थे एंड बैक देन अमेरिका वाज हेला रेसिस्ट. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेसिज्म जो विक्टिम की फैमिलीज थी उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा था जैसे उन्हें मिलना चाहिए था, राइट. सो दैट इज दैट. Right, so one of the cases that just made me so sick. I felt, you know, आप सुनते हो ना, कोई एक केस ऐसा रह जाता है जो आपके दिमाग में फंस जाता है कि oh my god, this is so disgusting. Like how life कितनी cruel हो सकती है किसी के साथ. And this one particular murder was an example of that. Okay, so मुझे नहीं पता, I'm not sure about this, पर मैंने कई जगहों पर सुना है कि जेफरी के केस में उनके विक्टिम्स का नाम ज़्यादा नहीं लेते because I don't know, it's like victims की families don't allow the whole name taking, so I'm not going to take the name. मुझे नहीं पता, I don't want any issues, right? ठीक है, अगर कोई नहीं इस बारे में बात करना चाहता, I respect their privacy, so I'm not going to take names. But there was one victim of Jeffrey Dahmer who he murdered in 1991, and so this person, he was a 14-year-old boy. 14 साल का बच्चा था वो, ठीक है. So this 14-year-old boy and इसकी family, they were actually from Laos, and Laos is, you know, if I'm not sure like exactly किधर है, but मुझे ये पता है कि it's an Asian country, and you know, Thailand, Indonesia, Vietnam, around this area में पड़ता है. It's Southeast Asian country. Basically, they were Asian, right? Obviously, there are racial minorities in America. ये बात अभी मैं कर रही हूँ 1990s की. सो अभी इस टाइम पर जब हम देखते हैं इतना ज़्यादा रेसिज्म ऑलरेडी है, 1990s में it was bonkers. Okay, so there were many people like these जो बहुत ज़्यादा racially oppressed थे at that time because they were not the
those supreme white people, right? And before I talk about this particular murder, I will give you a little bit of flashback. In 1988, so 1988 में जेफरी एक बार के बाहर से एक 13-year-old लड़के को अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है, अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है, उसको ये कह के कि आई विल फोटोग्राफ यू, राइट, एंड आई विल गिव यू मनी उस फोटोग्राफ के लिए, राइट, एंड ही सेड कि इट विल बी अ नेकेड फोटोग्राफ, पैसे देता है, उसको अपने साथ लेकर जाता है, ठीक है. एंड व्हाट ही डज इज ही ड्रग्स हिम एंड ही टेक्स द फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग एंड ही सेक्सुअली असॉल्ट्स दैट 13-year-old kid, ओके. अब होता क्या है, वो लड़का वो भाग जाता है जेफरी के वहाँ उस रूम में से. आई डोंट नो हाउ, आई थिंक सम हाउ वो भाग जाता है, ठीक है. वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस के पास कंप्लेंट करता है एंड जेफरी के पास से उसकी फोटोग्राफ्स मिलती हैं, राइट. ही हैड द फोटोग्राफ्स ऑफ द नेकेड बॉय एंड बिकॉज वो बच्चा सिर्फ 13 साल का था, ही वाज जेफरी उसको अरेस्ट करते हैं ऑन सेक्सुअली assaulting a minor, okay. So 1989 में जेफरी pleaded guilty to the charge of second degree sexual assault and of enticing a child for immoral purposes. So जेफरी के फादर वो क्या करते हैं, वो उसके लिए एक अटॉर्नी बुक करते हैं एंड वो जो अटॉर्नी होता है वो ये प्लान करता है कि जेफरी को हम साइकियाट्रिक इवेल्युएशन की तरफ लेकर जाएंगे, जस्ट टू समहाउ प्रूव कि वो थोड़ा सा मेंटली ठीक नहीं है, ताकि उसको सजा कम मिले, ठीक है. उसको थोड़ा सा अगर हम पागल बता देंगे तो उसको सजा कम मिलेगी. So that is the type of course he wanted to take. तो वो क्या करते हैं, जो जेफरी को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस करवाते हैं, ठीक है, कोर्ट की हियरिंग से पहले. सो इन सारी जो भी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है उससे ये पता लगता है कि जेफरी वाज इम्पल्सिव, ही हैड नो जॉब, ही वाजंट वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट. वो उसको ऐसे दिखा देते हैं कि जेफरी ने लाइफ में कुछ अकम्प्लिश नहीं किया, उसकी कोई जॉब नहीं है एंड दैट इज व्हाई ही इज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो जो जज होता है ना, ही एक्चुअली हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर जेफरी. उसको जेफरी को उतनी ज्यादा सजा नहीं देता, तो जेफरी को इवेंचुअली उतनी सजा नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी. एंड आई डोंट रिमेंबर लाइक उसको कितनी होती है, आई थिंक 1 साल की, फिर उसके बाद वो पैरोल पे आ जाता है एंड समथिंग लाइक दैट, लाइक ऐसे कुछ होता है, ठीक है. बट होता ये है कि लाइक 2-4 महीने के बाद ही जेफरी इज बैक टू बिजनेस, ही इज कमिटिंग क्राइम्स, ही इज किलिंग पीपल अगेन, ठीक है. सो दिस किड who Jeffrey assaulted in 1988 was the elder brother to the kid जिसको Jeffrey will kill in 1991. So same way Jeffrey ने 1991 में बार के बाहर से एक 14-year-old boy को अपने साथ वो लेकर जाता है अपने अपार्टमेंट में, ठीक है. And again he tells him that okay I will photograph you, I will give you money for that, and वो बच्चा चला जाता है, very similar way. And it's ironic how ये दोनों actually भाई थे. It's very sad, है ना. So अब जेफरी जब उसको वहां पर लेकर जाता है, he drugs him, assaults him, and if जस्ट असॉल्टिंग एंड ड्रगिंग वाज नॉट इनफ, जेफरी क्या करता है, इस बच्चे के स्कल में ड्रिल से होल कर देता है और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देता है. नाउ बेसिकली जेफरी क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि उसके पास एक पर्सनल ह्यूमन ज़ॉम्बी हो जिसके साथ वो जब चाहे जो मर्जी करे, रादर दैन की रोज जाकर एक नया विक्टिम ढूंढने के. ही वांटेड लाइक अ फुल टाइम विक्टिम जो बिल्कुल भी किसी भी तरह भाग ना सके और बिल्कुल उसके इशारों पे चले. सो वो उस बच्चे के दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देता है. नाउ बिकॉज दिस किड वाज ड्रग्ड, तो वो थोड़ी देर के लिए पास आउट हो जाता है. सो जेफरी क्या करता है, वो थोड़े टाइम के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है. जब जेफरी वापस आता है तो वो देखता है कि वो बच्चा सड़क पर 3 विमेन के साथ होता है. ही वॉज नेकेड, लाइक उस बच्चे ने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था. सो वो वुमेन समहाउ उसको कपड़े पहना देती है एंड वो वुमेन पुलिस वाले को कॉल कर लेती हैं बिकॉज वो क्लियरली देख रही थी कि इस बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं है. बिकॉज वो बच्चा ड्रग था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है. सो जब उन वुमेन ने देखा, एंड आई थिंक दीज वर ब्लैक वुमेन, उन्होंने जब देखा कि इट्स नॉट ओके, वो पुलिस को कॉल करती है एंड दीज पुलिसमैन दे वर वाइट पीपल, ठीक है. एंड वो आते हैं, 2 लोग आते हैं. एंड सबसे पहले तो बिकॉज ये कॉल की थी 3 ब्लैक वुमेन ने और जो विक्टिम था वो था एक एशियन रेस का, एंड जो हमारा इन चार्ज कल्प्रिट था वो था एक वाइट मैन, ठीक है. सो जेफरी बेसिकली पहले तो उन वुमेन को ये कहता है कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसने थोड़ी सी ड्रग्स ली हुई है, थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड है, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा सा लड़ पड़े थे, राइट. बट वो वुमेन नहीं मानती, ठीक है. सो उन वुमेन के कहने पे फाइनली पुलिस जाकर आई थिंक देखने की कोशिश करती है कि हाँ ये बॉयफ्रेंड है एंड एवरीथिंग. बट जेफरी उन्हें ये नहीं बताता कि वो माइनर है अकॉर्डिंग टू, मतलब जेफरी ये बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है. वो शायद उसको उसकी न्यूज़ पे दिखा देता है कि सी मेरा बॉयफ्रेंड है, यू आर डूइंग दिस
एंड वो ये नहीं बताता कि वो माइनर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका बॉयफ्रेंड था, ही वाज अ वेरी वेल अडल्ट एंड वी आर हैविंग दीज थिंग्स, एंड फिर पुलिस उसको छोड़ देती है, ठीक है। पुलिस नहीं देखती, वो वुमेन कहती रह जाती हैं कि प्लीज चेक, बट वो नहीं देखती। वो उस लड़के को वापस जेफरी के पास छोड़ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जेफरी किल्स हिम, जेफरी kill that 14-year-old boy, okay? So basically इस बच्चे के केस में it was clear that पुलिस की गलती की वजह से वो बच्चा मरा, ठीक है। उस बच्चे के मरने के बाद भी आई थिंक थोड़े टाइम तक जेफरी ने और मर्डर किए हैं, 1 या 2 मर्डर आई थिंक और किए थे। सो अगर पुलिस उस टाइम पे ठीक से देखती तो शायद ये बच्चा भी बच जाता, और उसके बाद अगर कोई आधा मर्डर हुआ वो भी बच जाता। बट मैंने जब ये सीरीज देखी थी और स्पेसिफिकली ये वाला केस देख के, एंड हाउ दे शोड द सफरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली, बिकॉज वो एक माइनॉरिटी फैमिली थे, जितना उनको आई थिंक मिलना चाहिए था सपोर्ट, मतलब आई थिंक अगर वो एक अमेरिकन फैमिली होती तो शायद उनको बढ़िया justice मिलता as compared to what they actually got, and it really made me very sad, it makes me very sad. And also okay, इस बच्चे का, if I'm not wrong, I think इस बच्चे का skull जेफरी के फ्रिज में से मिला था जब पुलिस ने फाइनली जेफरी को पकड़ लिया था। so yeah, yes guys, this is it for today's video, and please the like button, subscribe to my channel if you haven't already, and I'll meet you in the next video guys, and yeah, bye bye.